Good morning to all of you. Hope you all are well. Today we are going to learn English subject. In English, we will take lesson number 4, free and happy. This month is March and this is the second lecture. So I have mentioned as a week 1 lecture 2. Okay, and we have learned this last period that fill in the letters to complete the words. A farmer works in a field, field, field. Then a doctor works in a hospital, hospital, hospital. A teacher works in a school, school, school. A policeman works in a station, police station. A postman works in a post office, POSTOFFICE, पोस्ट ऑफिस. ओके, यहाँ पे आपको मिसिंग लेटर्स है वो आपको फिल करना है. आई हैव पूरा मैंने स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है. ओके, सो यू हैव टू चेक कि कहाँ पे मिसिंग लेटर्स है. फाइन. नेक्स्ट इज रीअरेंज द लेटर्स टू कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल. एनिमल के नेम्स आपको लिखने हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज PHANTELE. The picture is of elephant, so you have to mention ELEPHANT with the correct spelling. ELEPHANT you have to mention. In the second, NAKES, it's a snake, SNAKE. Okay, then third is COCKPEA. You have to mention the correct spelling is PEACOCK, peacock. Then fourth is the picture is of sparrow. Over there it's mentioned RROWSPA. You have to correct the spelling, SPARROW. Okay, now next is circle the words to complete the sentences. My father's name is Vinod. He or it is a doctor. Or I or me love him. You have to circle on the correct option. My father is a Vinod. My father's name is Vinod. He is a doctor. क्योंकि सिंगुलर पर्सन है और एक है मैन है, इसलिए विल यूज़ ही इज़ अ डॉक्टर. आई लव हिम. आई टोल्ड यू बिफोर इवन कि मी जो है वो सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है, राइट. सो आई लव हिम. फाइन. नेक्स्ट इज सोना हैज़ बीन टू अ फेयर. सोना हैज़ नॉट बीन टू अ जू. वी विल टेक हर टू द जू. सोना हैज़ बीन और सीन यहाँ पे ऑप्शन है. यू हैव टू सर्कल ऑन बीन. सोना हैज़ बीन टू अ फेयर. शी हैज़ not or no. when we will use in a middle of sentence वहाँ पे यूज़ होता है not. She has not been to a zoo. We will take her to the zoo. Okay, next is what is each one doing. Write on the blanks. आपको ब्लैंक्स में लिखना है. यहाँ पे एक करेक्शन है जो आपको करना है. दैट इज फादर इज कुकिंग. तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है COOKING, कुकिंग. ओके, देन द बॉय इज ड्रिंकिंग. सो यू हैव टू मेंशन DRINKING, ड्रिंकिंग. And the girl is eating, so you have to mention in this blank EATING, eating. Okay, then the cat is sleeping, so you have to mention over there SLEEPING, sleeping. Okay, this much you have to write it down in your टेक्स्ट बुक. जहाँ पे ब्लैंक्स है वहाँ पे आपको ये मेंशन करना है. ओके, एंड अनदर 2 वर्ड्स ऑलरेडी हैव मेंशन. नाउ राइट 2 more ing words. In that we have mentioned LAUGHING, laughing.
and LOOKING, looking. Okay, next is read these words: clean, cleaned, help, helped. We can change most today words into yesterday words by and adding ed. चेंज दिस टुडे वर्ड्स इनटू यस्टरडे वर्ड्स. आपको क्या करना है, वर्ड दिए हैं जो टुडे के लिए मतलब आज के लिए यूज़ होते हैं, आपको उसको पास्ट टेंस में फॉर्म करना है. सो क्लाइंब उसका होता है क्लाइंब, ईडी यूज़ होता है एट द एंड ऑफ दिस वर्ड, आपको ईडी यूज़ करना है. सो क्लाइंब, क्लाइंब्ड, ब्रश, ब्रश्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉक, वॉकड, टॉक, टॉक्ड, पैक, पैक्ड. यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हर एक वर्ड में जैसे BRUSH है तो BRUSHED ब्रश्ड, देन वॉश WASH वॉश है तो WASHED वॉश्ड, देन वॉक WALK वॉक तो उसका पास्ट टेंस यूज़ हुआ है WALKED वॉक्ड. देन फिफ्थ इज टॉक TALK टॉक, उसका पास्ट टेंस यूज़ हुआ है TALKED टॉक्ड. देन सिक्स इज पैक PACK पैक, उसका पास्ट टेंस में वर्ड यूज़ हुआ है PACKED पैक्ड. ओके, सो दिस मच यू हैव टू डू. अभी नेक्स्ट में है लुक एट द पिक्चर, राइट द आंसर्स. यहाँ पे क्या करना है आपको, यू हैव टू पिक्चर रीडिंग है, पिक्चर को देखना है एंड यू हैव टू चेक कि क्या कितना है. सी ओ हियर इट मेंशन एज हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द पार्क. you have to count the number of trees. Over there 3 trees we can see in this picture, so you have to mention there are 3 trees in the park. This exercise you have to write it down in your notebook because not enough space is there in this, so you have to mention in your notebook there are 3 trees in the park. Okay, next is what is the color of the kites. What is the color of kites? It's pink, right? So the color of the kites is pink, right? The color of kites is pink. Then what are the children doing? What are the children doing? Children are playing. Yes, so you have to mention the children are playing. Then what is grandma doing? Grandma क्या कर रहे हैं, feed कर रहे हैं squirrels को, so you have to mention grandma is feeding squirrels. Okay, there are 3 trees in the park. The color of kites is pink. The children are playing in the park and grandma is feeding squirrels. Okay, next is find out and write the names of 3 trees and 3 animals. You have to mention, कोई भी 3 trees के name लिखने हैं and animals के भी 3 names लिखने हैं. Already you have learned the spellings of animals के name भी हम आप लोगों ने learn किए हैं and even of trees आप लोगों ने EVS में learn किया है, right? So I am going to big trees, big plants are called trees, right? Okay, so you have to mention over here MANGO mango tree, then NEEM neem tree, and BANYAN banyan tree. Okay, so I have mentioned 3 trees name. You also can mention any trees name. I have mentioned this, it's not compulsory to mention the same. आप कोई भी ट्री के नेम लिख सकते हो, बट इट्स कंपल्सरी कि वो प्लांट नहीं वो ट्री होना चाहिए. ओके, so mango tree, neem tree and banyan tree. And in another column it's animals name. Animals में I have mentioned lion, tiger, elephant. You can mention cow, buffalo also in this. So animals के आपको name लिखने हैं. Fine. In the next exercise, okay, animals are living things. They too feel pain. They too feel happy and sad. Discuss with your partner and write yes.
आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको अपने पार्टनर के साथ, अदरवाइज यू कैन डिस्कस विथ योर पेरेंट्स टू। यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, सी, इज़ इट राइट टू कीप एनिमल्स इन केजेस? केजेस में रखना अच्छा है? नो, राइट? सो वहाँ पे आपको मेंशन करना है नो। देन, इज इट राइट टू थ्रो स्टोन्स एट एनिमल्स? एनिमल्स पे स्टोन्स, पत्थर मारना अच्छा है? नहीं, दे आर गेटिंग पेन, राइट? तो उन वहाँ पे भी हम लिखेंगे नो। देन, इज इट राइट टू फीड बर्ड्स? बर्ड्स को फीड करना चाहिए, आपको भूख लगती है, वैसे बर्ड्स को भी भूख लगती है ना, सो वी हैव टू फीड दैम, यस। देन, इज इट राइट टू पुल द टेल ऑफ अ डॉग? डॉग की टेल को पुल करना चाहिए? नहीं, काट लेगा, है ना, उसको भी पेन होगा तो वो काट लेगा, सो नो। ओके, सो यू हैव टू मेंशन दिस यस और नो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यू हैव टू फर्स्ट डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड देन यू हैव टू राइट यस और नो। ओके, नेक्स्ट इज grammar worksheet in the flowers book only. uh, Free and happy, what you have to do here, add ing to this words, write the new words on the blank. आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है आपको, अभी जो मतलब करंट सिचुएशन दिखानी है कि दिस इज वर्किंग, नॉट वर्किंग, जो हम बोलते हैं ना आईएनजी लगाना है उसके पीछे, वर्ड के पीछे, कि बताना है कि ये अभी हो रही है एक्टिविटी, उसके लिए हम आईएनजी यूज़ करते हैं, राइट? एंड ईडी कब यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस के लिए, तो यहाँ पे आपको आईएनजी वर्ड, आईएनजी यूज़ करना है, ऐड करना है आपको हर एक वर्ड के पीछे। देन फर्स्ट इज जंप, जंप है तो यू हैव टू राइट जंपिंग, JUMPING, जंपिंग। देन सेकेंड इज फॉल, फॉल को अगर हम ING लगाएंगे तो वी विल यूज द वर्ड, उसको जो प्रोनाउंस करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉलिंग, FALLING, फॉलिंग। देन थर्ड इज FLY, फ्लाई, तो ING वर्ड होगा FLYING, फ्लाइंग। देन फोर्थ इज रीड, रीड अगर उसको हम ING यूज़ करेंगे तो READING, रीडिंग। देन TALK, टॉक, उसमें अगर हम ऐड करते हैं ING तो वी विल यूज़ द वर्ड TALKING, टॉकिंग। देन SING, सिंग, ING यूज़ करते हैं तो SINGING, ओके, सिंगिंग। देन ईट, ING यूज़ करते हैं, सो वी विल वर्ड EATING, ईटिंग। देन SELL, सेल, वर्ड होगा SELLING, सेलिंग, ओके। जंपिंग, फॉलिंग, फ्लाइंग, रीडिंग, टॉकिंग, सिंगिंग, ईटिंग एंड सेलिंग, ओके। सो दिस इज, ये जो वर्ड है जो आप कंटिन्यू दिखा रहे हो कि हाँ ये एक्टिविटी चल रही है, ये कर रहे हैं, तब जो भी वर्ड यूज़ होता है ना उसके पीछे ING, वर्ड के पीछे ING लगता है। सो वी आर रीडिंग, वी आर राइटिंग, ओके। जो कंटिन्यू दिखा रहे हो आप एक्टिविटी को, उसके लिए ING वर्ड्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज सी द पिक्चर, आपको पिक्चर देख के बताना है कि क्या एक्टिविटी चल रही है। इन द फर्स्ट पिक्चर द गर्ल इज रीडिंग अ बुक, राइट? सो यू हैव टू मेंशन READING, रीडिंग। देन द बॉय इज वॉशिंग द क्लोथ, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना है WASHING, वॉशिंग। देन द गर्ल इज बाइंग, बुक्स बाय कर रहे हैं, राइट? सो वहाँ पे आपको मेंशन करना है BUYING, बाइंग। देन द बॉयज आर पुशिंग द टेबल, पुश कर रहे हैं, राइट? सो PUSHING, पुशिंग। देन फिफ्थ इज बाल बना रहे हैं ना, है ना, कॉम से, सो कॉम्बिंग द हेयर, COMBING, कॉम्बिंग। देन द बॉय इज डूइंग स्विमिंग, स्विम कर रहा है, राइट? सो हम मेंशन करेंगे SWIMMING, स्विमिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट इज change the words within the bracket into yesterday words
राइट द न्यू वर्ड ऑन द ब्लैंक. यस्टरडे वर्ड के लिए क्या करेंगे हम, जो वर्ड दिया है उसके पीछे ईडी. राइट. सो हर एक वर्ड ऐसे फॉर्म नहीं होता है, बट ओवर हियर वॉट एवर इट्स मैंशन, उसमें जो भी वर्ड दिए हैं उसके पीछे ईडी यूज़ करेंगे तो आपका जो वर्ड है वो यस्टरडे वर्ड में बन जाएगा. ओके. फर्स्ट इज टीना डैश ग्रैनी हर न्यू ड्रेस. टीना शोड, शो किया है, वहाँ पे ब्लैंक में लिखा है शो, वहाँ पे हम लिखेंगे शोव्ड ग्रैनी हर न्यू ड्रेस, मतलब उसने वो दिखा दिया है, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ शोव्ड. देन मनप्रीत डैश वाटर इन द पॉट. फिल अभी कर रहा होगा तो हम लिखेंगे फिलिंग, बट यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ करना है तो विल मेंशन फिल्ड, मतलब उसने ये काम कर दिया है. मनप्रीत फिल्ड वाटर इन द पॉट. देन राज एंड शिव डैश ऑन द प्लेटफॉर्म. वेट, क्या लिखेंगे, वेटेड. यहाँ पे WAITED, वेटेड फॉर ऑन द प्लेटफॉर्म. देन राजू एंड जॉन डैश इन द गार्डन. प्ले है तो क्या लिखेंगे, प्लेड, पहले कर चुके तो PLAYED, प्लेड. देन मनोज डैश एट हिज पेट पैरॉट निमकी. स्माइल तो क्या लिखेंगे हम उसके लिए, स्माइल्ड, SMILED, स्माइल्ड. देन आलिया डैश हर लिटिल सिस्टर सायरा, हग, हग्ड, HUGED, हग्ड. देन मम्मी वाटर the plant, mummy watered the plant. Then WATERED, watered. Okay. Then eighth is grandma dash for her spectacles everywhere. वहाँ यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, so looked, LOOKED, looked. Okay. So this much is there. आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है. फाइन. Thank you for watching. Stay home, stay safe and keep learning.